Good morning, children. I am Richa Mishra, and children, I think so you all are well at your home. Now, in this video, first I want to tell you about what is the course of July in Science. So, children, you note it down. The July course in Science, Chapter 3 and Chapter 5. Chapter 3 is Animal and their Food, and Chapter 5 is the Human Body. In this video, I will teach about animals and their food. This is the very important chapter in science. You have to study in your previous classes about this topic. So children, in class 3 you have to learn various facts about animals, eating habits, what is their eating habits, and how many in how many categories the animals divided into how many categories. So children, it is very important to know about these are the 6 main points of this chapter. First one is eating habits of animals, second is herbivorous, and third is carnivorous, next one is omnivorous, and next fifth point is other eating habits, and last one is food chain. In this chapter we will discuss about these 6 main points because it is very important to know. So children, first we are talking about eating habits of animals. Children, animals need food to live and grow, to get energy for daily activities, and to be healthy. जितने भी जानवर होते हैं सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है. क्यों भोजन की आवश्यकता पड़ती है? Why they need food? They need food to live and grow. उनको बढ़ने में, जिंदा रहने में मदद मिलता है. बिना भोजन किए हुए क्या वो जिंदा रह सकते हैं? No, they cannot survive without eating food. So children, next is to get energy. Food के द्वारा वो energy भी get करते हैं, लेते हैं for their daily activities. Daily के जो भी activities होते हैं, जो भी जानवर के different kinds of animals have a different kinds of eating habits and a different kinds of activities in them. So children, so it is very important to know food is very important for live and grow and to get energy for doing such a daily activities and to be healthy. और स्वस्थ रहने के लिए भी ये बहुत जरूरी है. कौन जरूरी है? What is essential? Food. That is food. So children, animals have different feeding habits. जितने भी animals होते हैं उनकी feeding habits जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं. उनके खाने के तरीके अलग अलग तरह के होते हैं. So based on the food animals eat, जो भी food वो खाते हैं, they can be classified into 3 groups. Based on food animals eat, भोजन के खाने के तरीकों पे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को. फर्स्ट इज एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास. फर्स्ट इज एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास. गॉट इट चिल्ड्रन? सेकेंड ग्रुप इज animals that eat only other animals. And third category is animals that eat both, means both plants and other animals. So look at the children. These are the 3 categories that there are the 3 categories of animals based on their food habits, feeding habits. First is animals that eat only grass. अब ऐसे एनिमल की बात करें जो कि सिर्फ ग्रास खाते हैं. Those animals who eat only
ग्रास, दैट इज कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल्स। उस एनिमल को हम लोग कौन सा एनिमल कहते हैं? दैट इज हार्बीवोरस एनिमल्स। उस एनिमल्स को हम लोग हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं, या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कह सकते हैं। एनिमल्स विच ईट ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स, नट्स एंड ग्रेन्स आर नोन एज हार्बीवोरस। इन सभी चीज़ों को जो एनिमल खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। Now, as for example, cow, elephant, deer and giraffe are the examples of herbivorous animals. Herbivorous, अब हम बात करेंगे herbivorous की। हमने बात किया कि animals that eat only grass, that is called herbivorous animals। वैसे animal को हम लोग क्या कहते हैं? herbivorous animals कहते हैं। ये किस कैटेगरी में आता है? herbivorous के कैटेगरी में आता है। हमने एग्जाम्पल्स भी दिया कैसे कैसे जानवर, कौन कौन से जानवर जो हैं वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। जिस एज फॉर एग्जाम्पल काउ, एलिफेंट, डियर एंड जिराफ, दीज आर द हार्बीवोरस एनिमल्स। Now children, it is very important to know about what type of teeth have a herbivorous animals. So children, let me discuss about herbivores have strong and broad front teeth. हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो टीथ होती है फ्रंट की, वो स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही मजबूत होती है एंड ब्रॉड होती है, इट मीन्स चौड़ी होती है। दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट ऑफ ग्रास एंड लीव्स। और ये जो फ्रंट टीथ होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ब्रॉड भी होते हैं, वो किस चीज में हेल्प करते हैं? तो दीज टीथ हेल्प देम टू बाइट ऑफ ग्रास को काटने में मदद करते हैं एंड लीव्स को काटने में मदद करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग, फ्लैट एंड ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मीन्स पीसना, पीसना। तो कुछ एनिमल्स हार्बीवोरस एनिमल्स के स्ट्रॉन्ग होते हैं टीथ, फ्लैट होते हैं एंड ब्रॉड टीथ होते हैं। वो कौन से टीथ होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो कि फ्रंट टीथ के बाद होते हैं। द टीथ टू च्यू द फूड, जो कि मदद करता है किसी भी भोजन को चबाने में। इट इज लुक एट द पिक्चर हियर इन योर बुक। दिस इज द पिक्चर ऑफ जेब्रा's teeth. You look here on this picture. You look cow's teeth and you look here the picture of goat. अब हम बात करेंगे। Now our next point is animals like cow and buffalo bite and swallow. Some animals have their different kinds of feeding habits, and it is very important to know about some animals have only, as for example cow and buffalo bite and swallow their food. It means that वो चबाते नहीं हैं, ग्राइंड नहीं करते हैं उसको। तो that animals, as for example those who only bite and swallow their food without chewing, तो that is buffalo and cow. वो कौन कौन से जानवर हो गए? buffalo हो गए, cow हो गए। After some time, और कुछ समय के बाद they bring their food back into their mouth. अब जो भोजन उन्होंने मुंह में डाल के निगल गया है, जो घोट गए हैं, निगल गए हैं, अब उस भोजन को कुछ समय के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके मुंह में लाते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं? चबाते हैं। After some time they bring this food back into their mouth and chew it properly with their back teeth. किसकी मदद से? बैक टीथ की मदद से वो चबाते हैं उसको। दिस इज कॉल्ड चीविंग द कड। इसको हम इंग्लिश में चीविंग द कड एक प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं? बाइट करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं उस फूड को बिना चीविंग किए हुए, एंड आफ्टर सम टाइम दे bring back their food and chewing it properly. So this process is known as chewing the cud. This is the habit of cow and buffalo. Now look at the and our next point is squirrel, rats and rabbits have sharp front teeth. स्क्वेरल के, रैट्स के, रैबिट्स के, इन सभी के दांत जो होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, वो शार्प होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। विथ विच दे बाइट द फ्रूट्स एंड सीड्स, जिसकी मदद से वो फ्रूट्स को या सीड्स को क्या करते हैं? काटते हैं। दीज एनिमल्स नो द फूड
इस इन एनिमल को हम कह सकते हैं नो द फूड, फूड को क्या करते हैं, नो करते हैं। दे आर नोन एज नोइंग एनिमल्स, और इस एनिमल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायरल, रैट्स एंड रैबिट्स को नोइंग एनिमल कह सकते हैं। Now next topic is carnivorous. Carnivorous means flesh eating animals. Those animals that eat only flesh of other animals, these are known as carnivorous animals. जो जानवर सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों के मीट को, उनके फ्लेश को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। दे डू नॉट ईट प्लांट्स, वो प्लांट्स को नहीं खाते हैं। कौन नहीं खाते हैं, दैट इज कार्निवोरस। कार्निवोरस प्लांट्स को नहीं खाते हैं। दे ओनली ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल लायन, wolves, crocodiles, tigers and leopards are example of carnivorous. This category of carnivorous, you look at the here second category, animals that eat only other animals, animals that eat only other animals, जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवर के फ्लेश को खाते हैं, वैसे जानवर को हम लोग किस कैटेगरी में रखें, कार्निवोरस। These are classified into these are the carnivorous animals. Now next is omnivorous animals. Now look here, this is our third category, that is the category of omnivorous animals. Animals that eat both plants and other animals. वैसे जानवर जो कि प्लांट भी खाते हैं या अदर एनिमल्स के फ्लेश भी खाते हैं, दोनों खाने वाले जानवरों को, दोनों तरह के भोजन करने वाले जानवर को हम लोग ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। यू लुक हियर, दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. Animals divided into three categories based on their food. So first category is herbivorous, second category of carnivorous, and third is omnivorous. Now children, as for example of omnivorous animals, lion, wolves, omnivorous animals are crow, bear, boy. Human being also eat plants and the flesh of other animals. So children, we are omnivorous. Some humans are in omnivorous categories, and some they only eat plants, plants products. These animals are in these human beings are in the category of herbivorous. Now children, it is very important to know about the which type of teeth of a carnivorous. So children, carnivorous have a sharp pointed front teeth for tearing flesh. कार्निवोरस एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, फ्रंट के पॉइंटेड टीथ होते हैं ताकि वो किसी भी फ्लेश को फाड़ सके। टीयर मतलब फाड़ना होता है किसी भी फ्लेश को, किसी भी मांस को वो अच्छे से फाड़ सके। दे ऑल्सो हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ, उनके पास ब्रॉड और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जिसकी वजह से एट द बैक ऑफ च्यू द फ्लेश एंड बोन्स, और जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, च्यू द फ्लेश एंड बोन्स, और फ्लेश को और बोन्स को चबाते हैं जो कि बैक में होते हैं उनके। दिस इज द टाइप ऑफ टीथ आर इन कार्निवोरस एनिमल्स। नाउ ऑल स्नेक्स आर कार्निवोरस, जितने भी तरह के स्नेक्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं। दे फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस, फ्रॉग्स एंड एग्स ऑफ अदर एनिमल्स। वो अक्सर ही क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि माइस को खाते हैं, फ्रॉग्स को खाते हैं या फिर एग्स को खाते हैं, किसके, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के। अब दे डू नॉट च्यू दियर फूड बट स्वेलो द होल ऑफ इट, वो चबाते नहीं, सीधे निगल जाते हैं। फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट, फ्रॉग्स क्या खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, उनके पास लंबे और स्टिकी टंग होते हैं जो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, अपने अंदर चिपका लेते हैं। आप देखते होंगे, यू लुक इन योर एनवायरमेंट, सम फ्रॉग्स यू लुक इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में अक्सर आप देखते होंगे फ्रॉग्स को कि वो चुपचाप धीरे धीरे आता है और कोई भी तरह के इंसेक्ट्स को अगर वो देखता है तो अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है और वो
तुरंत उसमें क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उनके टंग में जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, बिकॉज देयर टंग इज स्टिकी। उनकी टंग कैसी होती है, स्टिकी टंग होती है, जिसके वजह से वो किसी भी इंसेक्ट को अपने जीभ में चिपका लेते हैं। दे शूट आउट देयर टंग एंड इंसेक्ट्स गेट स्टक टू देम। वो उनके टंग में चिपक जाते हैं और इंसेक्ट्स को अपने अंदर लेके वो चबा जाते हैं। दे आर देन swallowed। वो क्या करते हैं, चबा निगल जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट what type of teeth in omnivorous animals. So children, in this chapter it is important to know about omnivorous. This is our third category of omnivorous animals, such as crows, dogs and bears eat both plants and flesh of other animals. These are called omnivorous. Human beings also eat vegetables, fruit, grains, nuts, meat and flesh. जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वेजिटेबल भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, फ्लेश भी खाते हैं। तो वी आर इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोरस। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। नाउ यू लुक एट द पिक्चर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस एनिमल्स, क्रो and the bear and boy. Boy is also a human being. So this is the category of omnivorous. These are the examples of omnivorous animals. Now our next point is scavengers. Now our next point is scavengers. Animals that eat the flesh of other dead animals. जो जानवर, दूसरे जानवर जो मर जाते हैं जानवर, उनके फ्लेश खाते हैं, उसको हम scavengers कहते हैं। हाइना या वल्चर आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। ये सभी, ये दो जो हैं एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, स्कैवेंजर एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ये दूसरे डेड एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अदर ईटिंग हैबिट। अदर ईटिंग हैबिट मीन्स दूसरे तरह की ईटिंग हैबिट्स होती हैं कुछ जानवरों में। अ बटरफ्लाई हैज अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब टू सक नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स। मीन्स चिल्ड्रन, जितनी भी तितलियां होती हैं, बटरफ्लाई होते हैं, उनके पास क्या होता है, क्या वो भोजन करते हैं? नो, दे गेट देयर फूड टू सक नेक्टर्स। एज फॉर एग्जाम्पल, उनके पास क्या होता है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है। उनके पास लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है जिसकी मदद से वो किसी भी प्लांट्स के, किसी भी फ्लावर्स के ऊपर बैठ के उसके नेक्टर को, नेक्टर कहते हैं एक मीठे से रस को, स्वीट लिक्विड को हम लोग नेक्टर कहते हैं, तो उसको वो सक करते हैं, यानी कि चूसते हैं। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सक? चूसना। तो वो चूसते हैं। जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते होंगे, a mosquito has a sharp hollow tube to suck food, suck blood. अब हम बात करें कि मॉस्क्यूटो की, मच्छरों की। मच्छर जो होते हैं वो हमारे ऊपर बैठ के कैसे हमारे खून को पी जाते हैं, आप देखते होंगे। ये तो कॉमन चीजें हैं जो कि आप वॉच करते होंगे। तो सो चिल्ड्रन, मॉस्क्यूटो हैव ऑल्सो शार्प हॉलो ट्यूब दैट हेल्प्स टू सक ब्लड्स, जो कि मदद करता है खून को चूसने में। लीच ऑल्सो सक्स ब्लड। लीच भी क्या करता है, वो खून को चूसता है, उसको जोंक भी कहते हैं हम। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज फूड चेन। सो चिल्ड्रन, दिस इज आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज फूड चेन। Food chain, green plants make food with the help of air, water and sunlight. Green plants क्या होते हैं, अपने भोजन तैयार करते हैं with the help of किसकी मदद से, हवा की मदद से, वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से। इन सभी चीजों की मदद से एक प्रोसेस के द्वारा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा वो अपना भोजन तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। प्लांट्स आर ईटन बाय हार्बीवोरस। अब प्लांट्स किसके द्वारा खाया जाता है, हार्बीवोरस के द्वारा खाया जाता है। हार्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। द हार्बीवोरस आर देन ईटन बाय ओमनीवोरस। अब जितनी भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो उनको कौन खाता है, उनको ओमनीवोरस एनिमल्स खाते हैं। जो दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स,
जो जानवर दूसरे जानवरों के फ्लेश को खाते हैं। अब दूसरे जानवर में कौन कौन किस तरह के जानवर, किस कैटेगरी के जानवर होंगे? दे आर नॉट अ फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, दे आर इन हार्बीवोरस। जो एनिमल्स हार्बीवोरस होते हैं, दे ओनली ईट प्लांट्स दैट, वैसे जानवरों को ओमनीवोरस एनिमल्स उनके फ्लेश को खाते हैं। अब हम बात करेंगे दीज फॉर्म्स अ चेन कॉल्ड द फूड चेन, और इसी के माध्यम से एक चेन रेडी होता है, उस चेन को हम लोग फूड चेन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इन सम फूड चेन अ स्मॉलर कार्निवोरस इज ईटन बाय बिगर कार्निवोरस। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ स्मॉलर कार्निवोरस को किसके द्वारा कौन खाते हैं? बिगर कार्निवोरस खाते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो फूड हार्बीवोरस यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कौन खा रहा है? कार्निवोरस खा रहे हैं, कार्निवोरस खा रहे हैं, कार्निवोरस जो कि ओनली फ्लेश खाते हैं। अब बात करें कार्निवोरस एनिमल्स, जो कि कौन से एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं? तो हार्बीवोरस है, जो कि द एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास, ओनली लीव्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट, दे ओनली ईट प्लांट, दैट इज हार्बीवोरस एनिमल्स। तो हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स को जो है वो ओमनीवोरस खाते हैं, बिकॉज ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो इट मीन्स दैट ओमनीवोरस किसको खा रहे हैं? कार्निवोरस को खा रहे हैं। और फिर ओमनीवोरस किसको खा रहे हैं? ओमनीवोरस दोनों को खाते हैं, कार्निवोरस को भी खाते हैं और हार्बीवोरस को भी खाते हैं। तो दिस इज आवर चेन, दिस मेक्स अ चेन, दैट चेन इज कॉल्ड फूड चेन। और इस चेन को हम लोग कौन सा चेन कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। This is our chapter animals and their food. I think so children you have no any problem in this chapter. Again I will revise it. Herbivorous. Herbivorous means plant eating animals. Now to chew something hard or to bite repeatedly. यानी कि नौ मतलब कहते हैं कि जो चीजें to chew something hard, कुछ भी हार्ड चीजें चबाते हैं या फिर किसी भी चीज को बार बार काटते हैं तो उसको हम नौ कहते हैं। कार्निवोरस मीन्स फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो कि फ्लेश खाते हैं दूसरे जानवरों के। ओमनीवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, प्लांट भी खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स भी खाते हैं। फूड चेन की बात करें, इट इज अ चेन शोइंग प्लांट्स बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, यानी कि प्लांट एनिमल के द्वारा खाया जा रहा है एंड दीज एनिमल्स बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स, और ये जानवर दूसरे बड़े बड़े जानवर के द्वारा खाए जाते हैं। तो ये these makes a chain that is called food chain. So children, this is our chapter, this is our third chapter, animals and their food. I think so you have no any problem in this chapter children. So you try to solve the exercise questions, some objective type questions, you try to solve in your copy. Our next video, in the next video I show the various exercise questions. I will solve the question answers in our next video. Thank you.